अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर है साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन, व्हाट इज साइक्लोअल्केन? They contain the ring of carbon atom. That contain a ring of carbon atom. The general formula for cycloalkane is CnH2n. Same like alkene. Same like alkene. अल्कीन की तरह इसका फार्मूला है साइक्लोअल्केन का फार्मूला. What is mean by this formula? It means that when carbon is equal to n, then hydrogen will be 2n. But for the cycloalkane, the carbon value, the n value starting from 3, 4, 5 up to so on. इससे पहले मैंने अल्केन पढ़ा था, अल्केन का फार्मूला लिखा था, इसमें था CnH2n+2, where n is start from 1 2 3 4 5 up to so on. In cycloalkane, the n is start from 3 4 5 6 up to so on. Let n is equal to 3, propane. Let n is equal to 3. Then the hydrogen will be H is equal to 2n, mean that 2 multiplied by 3 is equal to 6. Then the hydrogen will be 6. And cyclopropane, the general formula is a C3H6. इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन की तरफ आते हैं. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन? साइक्लोअल्केन की स्ट्रक्चर इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह. साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन and cyclohexane. It's called cyclopropane. And this is called cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane. अब एक एक को पढ़ते हैं. पहले हम साइक्लोप्रोपेन लेंगे. द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन पे पढ़ेंगे. साइक्लोअल्केन, cyclopropane, cyclopropane. The structure of cyclopropane. Cyclopropane हमारे साथ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये कार्बन एटम है, कार्बन, और ये दूसरा कार्बन, और ये तीसरा कार्बन. इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है. हाइड्रोजन भी इसके साथ है. हाइड्रोजन. अब ये बॉन्ड एंगल जो है ये 60 डिग्री है. 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है. The bond angle is 60 degree. But the carbon is sp3 hybridized. Why it is sp3 hybridized? Because it is attached with 4 atoms. 4 atoms attached. This is called sp3 hybridized. For sp3 hybridized, the bond angle should be 109.5 degree. Tetrahedral angle. Tetrahedral angle. In this case, the angle is 60. Deviate from 109.5 to 60. Then this deviation is called angle strain. What is angle strain? Angle strain. Then this is angle strain. The deviation from normal tetrahedral to
60 डिग्री is called angle strength. अब ये जो कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये बॉन्ड एक्सिस के अबव आएगा, और ये भी sp3 हाइब्रिड, ये भी sp3 बॉन्ड के एक्सिस के अबव, और ये इस तरह। अब इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं है। जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग की लिए शर्त है कि ये बॉन्ड एक्सिस के ऊपर बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल आए, बॉन्ड एक्सिस के ऊपर, ये बॉन्ड एक्सिस के अबव है, सो नॉट मैक्सिमम पुअर ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की पुअर ओवरलैप है हाइब्रिड। Because of this poor overlap, the carbon bond is weak bond, as compared to carbon bond and propane and cyclopropane. In cyclopropane, the carbon bond is weaker bond as compared to carbon bond and propane. Because in propane, the carbon angle is 109.5 degree, and cyclopropane, the bond angle is 60. The deviation from normal tetrahedral angle to the 60, and this is called angle strain. So, what is angle strain? Angle strain क्या है? So, what is angle strain? First of all, strain से पहले, angle strain से पहले strain क्या है? What is strain? Strain is the deformation of bond length or bond angle from normal or ideal value. जब बॉन्ड लेंथ की डिफॉर्मेशन हो जाती है या बॉन्ड एंगल की आइडियल वैल्यू से या नॉर्मल वैल्यू से, तो इसको हम स्ट्रेन कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेन, थ्री टाइप। फर्स्ट वन इज कॉल्ड टॉर्जनल strain. Second is called angle strain. Third is called steric strain. अब साइक्लोप्रोपेन में मैं एंगल स्ट्रेन पढ़ाऊंगा। साइक्लोप्रोपेन में हमारे पास टॉर्जनल स्ट्रेन भी है। टॉर्जनल इक्लिप्सिंग ऑफ बॉन्ड से जो दिया है, इक्लिप्सिंग ऑफ बॉन्ड से जो दिया है, लेकिन हमारा फोकस एंगल स्ट्रेन पर होगी। Then this is called ring strain. फिर टॉर्जनल एंगल स्ट्रेन स्टीरिक स्ट्रेन को हम रिंग स्ट्रेन कहेंगे कि ये रिंग स्ट्रेन है। सो हमारे पास sp3 टेट्राहेड्रल जो एंगल है ये 109.5 डिग्री है। ये कितना एंगल है? 109.5 डिग्री फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 की है। अब साइक्लोप्रोपेन में हमारे पास तो 60 एंगल है, साइक्लोप्रोपेन में हमारे पास 60 एंगल है। कितना एंगल है? 60 डिग्री है। और ये जो एंगल की कंप्रेशन हुई है, कंप्रेशन 49.5 डिग्री का जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन that compression lead to angle strain. इससे पहले मैंने डिफिनेशन में पढ़ा कि the angle strain
the deviation from normal tetrahedral angle 109.5 degree to 60 Scardo angle strain and cyclopropane. ये जो डिविएशन हुई है 109.5 से 60 तक, ये 49.5 हमारे पास एंगल स्ट्रेन इसमें आया है, एंगल स्ट्रेन। अब हमारे पास जो साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन जो है, इसमें हमारे पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है, और जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है वो 109.5 डिग्री है। Then this compression, this deviation lead to angle strain. This lead to angle strain. कितना एंगल स्ट्रेन है? 19.5 डिग्री एंगल स्ट्रेन है साइक्लोब्यूटेन। इस तरह हमारे पास साइक्लोपेंटेन जो है, साइक्लोपेंटेन में हमारे पास 108 डिग्री है, इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 1 डिग्री एंगल स्ट्रेन है, 1 डिग्री एंगल स्ट्रेन। एंड साइक्लोहेक्सेन देयर आर नो एंगल स्ट्रेन, एंड साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेन नहीं है, बिकॉज इसमें 120 डिग्री है, 120 डिग्री एंगल है, 109 से डिविएशन नहीं है, कंप्रेशन नहीं है, इसमें कंप्रेशन पॉसिबल नहीं है साइक्लोहेक्सेन में। Then this is the whole story of angle strain. What is the consequences of angle strain? Angle strain किस क्या लाता है रेंज में? What is the consequences of angle strain? Angle strain हमारे पास angle strain directly proportional to reactivity है, reactivity। ये angle strain इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी। जब एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, और जब ये घटेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये इनवर्सली रिलेटेड है स्टेबिलिटी के साथ और रिएक्टिविटी के साथ, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एमसीक्यूज आ सकते हैं, which one is more stable, which one is more stable, thermodynamically more stable, thermodynamically more stable कौन होगा? ऑप्शन में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। Which one is more stable? Thermodynamically more stable कौन होगा? अब देख, साइक्लोप्रोपेन में हमारे पास एंगल स्ट्रेन कितना था? 49.5 डिग्री। साइक्लोब्यूटेन में हमारे पास 19.5 एंगल था। साइक्लोपेंटेन में 1 डिग्री, साइक्लोहेक्सेन में 0। जब एंगल स्ट्रेन घटेगा तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। किस में कम है? साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेन कम है, तो थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल साइक्लोहेक्सेन होगा। अब अगर इस तरह एमसीक्यूज ये चेंज करेगा, व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव? अगर इधर रिएक्टिविटी की बात आ गई तो फिर स्टेबिलिटी में साइक्लोहेक्सेन है एंड रिएक्टिविटी में साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी साइक्लोप्रोपेन की रिएक्टिविटी। ये रिंग ओपनिंग एडिशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन देता है साइक्लोप्रोपेन, एडिशन रिंग ओपनिंग एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन देता है। एंड और साइक्लोप्रोपेन इनफ्लेमेबल है, साइक्लोप्रोपेन फ्लेमेबल है।
ये एयर के साथ रिएक्ट करके एयर के साथ कंबस्शन एक्सप्लोजन देता है। एक्सप्लोजन बहुत फ्लेमेबल है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ये हम एनेस्थेटिक में यूज़ करते हैं साइक्लोप्रोपेन। इसकी बहुत ज़्यादा यूजेस भी हैं और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये होल स्टोरी थी साइक्लोप्रोपेन की। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो रिएक्शन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन के बारे में होगा। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन इसके बाद पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन पढ़ेंगे और इसमें जो प्रिपरेशन के भी कुछ लेक्चर्स हैं एंड रिएक्टिविटी के ऊपर है। इसके बाद हम अल्कीन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।